Hello students, welcome to Chemistry Memory Tricks. Today this is chemistry class for 11th unit 1, some basic concepts of chemistry. Today's topic is definitions and development of chemistry. First, definitions of chemistry. Chemistry is the branch of science which deals with the study of composition, properties and interaction of matter. This is the one definition. Here is another definition also. The branch of science that studies the preparation, properties, structure and reactions of material substances is called chemistry. In हिंदी, केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम कंपोजिशन मतलब किस चीज़ से बना हुआ है मैटर, प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है मैटर, ये चीज़ें पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री कहलाती है। और दूसरी डेफिनेशन वो साइंस की ब्रांच जिसमें हम प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर अ थिंग, किसी चीज़ को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर वो देखने में कैसा है, और उसकी रिएक्शंस, मटेरियल सब्सटेंसेस की रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री कहलाती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज नाउ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. हाउ केमिस्ट्री डेवलप्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम. Chemistry plays an important role in science and it is interlinked with other branches of science. केमिस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है साइंस में और ये दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस से इंटरलिंक है, कनेक्टेड है। या इन एंशियंट इंडिया केमिस्ट्री वॉज कॉल्ड रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रस क्रिया और रस विद्या। अब पुराने भारत में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहते थे, रसतंत्र कहते थे, रस क्रिया या रस विद्या कहते थे। Now this is the flow chart that shows chemistry. This is chemistry. It is interlinked with other branches of chemistry. The main branches or you can subcategories of chemistry is inorganic chemistry, physical chemistry and organic chemistry. Or in higher classes there is another branch also, analytical chemistry. These branches are further divided into other branches like biochemistry is also a main branch, and this is bioorganic chemistry. These two interlinked with biology. And inorganic chemistry is further divided into organometallic chemistry, which is interlinked with organic chemistry, and organic chemistry further can be divided into bioorganic chemistry. Solid state chemistry is further branch of inorganic chemistry. Mechanochemistry is also a branch of chemistry, and chemical engineering you can say is the branch related to chemistry. Mechanochemistry and chemical engineering, these are related to engineering. And here it is physical chemistry, which is related to quantum chemistry, spectroscopy, and
Physical chemistry is related to physics, which is related to quantum mechanics, statistical mechanics, and this physics is all related to mathematics. Mathematics and chemistry is related by mathematical chemistry. Analytical chemistry is further related to forensic chemistry. This chemistry used for criminal investigation, in which we do DNA fingerprinting or like that. So in this way, chemistry is interlinked with other branches of science. ओके इस तरीके से केमिस्ट्री जो है दूसरी साइंस की ब्रांचेस से रिलेटेड है. Now another point, or you can say, a number of glass objects were found in Musky in South India 1000 to 900 BCE. This is the way to denote a year or date. BCE means before the Common Era, and Hastinapur and Takshashila in North India 1000 to 200 BCE. इन हिंदी बहुत से ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिले. मस्की ये जगह का नाम है साउथ इंडिया में इस डेट में 1000 से 900 BC. और हस्तिनापुर और तक्षशिला में भी ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिले जो कि नॉर्थ इंडिया में 1000 से 200 BC. इन फिगर और इन इमेज यू कैन सी द ग्लास ऑब्जेक्ट्स. So you can see the glass objects like this. The things are found. Another point is according to Rig Veda, one of the ancient Veds of India, tanning of leather and dyeing of cotton were practiced during 1000 to 400 BC. इन हिंदी ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग क्या है, टैनिंग ऑफ लेदर और डाइंग ऑफ कॉटन प्रैक्टिस करा जाता था. लोग मतलब इनके बारे में जानते थे, बहुत पहले से करते आ रहे हैं. In image you can see the Rigveda, and this is the image of dyeing of cotton. कॉटन जो है उसको डाई करा जा रहा है, दूसरे कलर में, वाइट से दूसरे कलर में डाई करा जा रहा है. एंड इन द लास्ट इमेज यू कैन सी द टैनिंग ऑफ लेदर कैसे बनाया जाता था, जिससे अलग अलग तरीके की चीज़ें बनती हैं. लेदर क्या है, लेदर जो है एनिमल स्किन है, एनिमल से ऑब्टेन करा जाता है. क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो क्या कहलाता है, टैनिंग ऑफ लेदर. बहुत पहले से होता आ रहा है इंडिया में, ऐसा ये प्रूफ मिल रहा है ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग. नाउ नेक्स्ट थिंग इज इन दिस डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, क्वार्टरलीज अर्थशास्त्र डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी. कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसमें ये बात कही गई है सॉल्ट के प्रोडक्शन के बारे में सी से. दिस इज द कौटिल्य अर्थशास्त्र, और यू कैन से चाणक्य अर्थशास्त्र. सॉल्ट, सो दिस इज द सॉल्ट विच द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट इज described in Arthashastra from the sea. Okay, now another thing is Shushrut Samhita explains the importance of alkali. अब ये भी एक तरीके की पुरानी किताब है सुश्रुत संहिता, जिसमें कि अल्कलीज के बारे में बताया गया है.
दिस इज द इमेज फॉर सुश्रुत संहिता। अल्कलीज जो कि ऐसे बेस जो OH आयन देते हैं वाटर में डिजॉल्व होने पर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज चरक संहिता mentions ancient Indians who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid, and oxides of copper, tin, and zinc. The sulfates of copper, zinc, and iron, and the carbonates of lead and iron. अब चरक संहिता जो है ये भी एक पुरानी किताब है जो कि जिसमें क्या बताया है, एक जो इंडियंस थे पुराने ज़माने में उनको पता था किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये सारे जो केमिकल हैं ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सब इनको पता था। सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड द कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड आयरन, इसमें चरक संहिता में लिखा हुआ है ये सब। नाउ this is the image for Charak Samhita. Now Acharya Kand, born in 600 BCE, originally known by the name Kashyap, was the first proponent of the atomic theory. He formulated the theory of very small indivisible particle which he named Parmanu, comparable to atoms. अब ये पुराने ज़माने में क्या ऋषि मुनि होते थे, वो आचार्य एक उनमें से एक थे आचार्य कंड, जो कश्यप के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने क्या बताया, एटम के बारे में बताया, पहली बार एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया हमारे भारत में। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक थ्योरी बताई जिसमें क्या वेरी स्मॉल पार्टिकल जो कि डिवाइड नहीं हो सकते थे, इनडिविजिबल, उनको उन्होंने नाम दिया परमाणु, जो कि क्या है आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है, एटम। अब मॉडर्न केमिस्ट्री की बात हो रही है तो एटम मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग किसने बताया, डाल्टन ने बताया। एटॉमिक थ्योरी जो है डाल्टन ने दी है मॉडर्न केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं। दिस इज़ द इमेज फॉर आचार्य कनट एंड डाल्टन। अब डाल्टन ने तो मॉडर्न ज़माने में बताया, लेकिन जो हमारे ये आचार्य कनट थे इन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था। Now next point is the concept of reduction of particle size of metals is clearly discussed in Charak Samhita. Extreme reduction of particle size is termed as nanotechnology. Now for image for this is the image for metals, nanotechnology of metals, you can say in Hindi। द जो कंसेप्ट है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज मेटल का, वो क्या है, क्लियरली डिस्कस है चरक संहिता में। और ये जो बहुत एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज जो मेथड होता है, इसको क्या कहते हैं हम, नैनो टेक्नोलॉजी। किसी चीज़ का भी पार्टिकल है उसमें हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करें तो ये नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। नैनो मतलब बहुत ही छोटा, जैसे हम बात करते हैं नैनोमीटर, तो वो क्या है, बहुत एक मीटर का बहुत छोटा पार्ट है, तो इसीलिए हम इसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस इमेज में क्या है, मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
In the 20th century, pharmaceutical industry based on Ayurveda continued to exist. अब 20th सेंचुरी में क्या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैं, जो दवाएं हैं, वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट कर रही थी. दिस इज द इमेज फॉर आयुर्वेद, और यू कैन से आयुर्वेद इज द साइंस ऑफ लाइफ. Now next point is basic constituents of matter are atoms and molecules. That is why chemistry is called the science of atoms and molecules. अब बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब बेसिक चीज़ मैटर में क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब मैटर के बारे में ही हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसकी वजह से क्या है, केमिस्ट्री जो है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं. केमिस्ट्री को हम ये भी कह सकते हैं. दिस इज़ द इमेज इन विच यू कैन सी एग्जाम्पल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एटम neon. This is the neon atom, you can say. इसके बाद ऑक्सीजन. दिस इज द एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, and here it is H2O molecule. In H2O molecule, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. In oxygen molecule, simply 2 oxygen atom. ओके, ये हो गए एग्जाम्पल एटम और मॉलिक्यूल के. नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग. सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री मेमोरी ट्रिक्स फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस, एंड कमेंट ऑन फॉर न्यू टॉपिक on which I make new videos. Thanks for watching.